आप भी Welcome back, viewers. Let's take a look at what's making the headlines. 7 all-party delegations will soon visit the key partner nations carrying India's message of zero tolerance to terrorism. Members of the parliament leading the 7 delegations include Shashi Tharoor, Ravi Shankar Prasad, Sanjay Kumar Jha, Baijant Panda, Kanimoi, Supriya Sule and Shrikant Shinde. Jammu and Kashmir State Investigation Agency is conducting searches in multiple locations in north and central Kashmir to unearth the terror infrastructure. The BSF jawans on the international border destroyed 7 Pakistani posts during the 7-day-long conflict between India and Pakistan. 3 Pakistani army jawans were killed during this. Additionally, around 18 to 20 terrorists were neutralized. The BJP is organizing Tiranga Yatras across the country from Assam to Gujarat and Jammu and Kashmir to Karnataka. Senior BJP leaders can be seen leading the rallies where the tricolour is flying high. Mumbai International Airport and Taj Mahal Palace Hotel have received bomb threats. These threats were sent via mail to the Mumbai police. Security agencies have commenced investigation into this threat. The aviation firm Celebi has moved the Delhi High Court against the Indian government's move to revoke its security clearances. In its plea, Celebi Airport Services India claimed the decision was based on vague national security concerns with no specific justification given. Now, viewers, the JPC team formed on One Nation, One Election bill is in Mumbai today. Leaders such as Anurag Thakur, Sanjay Jha and Bansuri Swaraj are present in Mumbai. Remember, viewers, the Joint Parliamentary Committee had the recommendations from all the parties on what about the One Nation, One Election decision takes the course over. And now my colleague Shahid Ansari is joining me with more details. Shahid, what are you picking up as far as now the JPC committee is presently in Mumbai today to conduct a meet after the recommendations have happened. Now a team comprising of BJP MP Bansuri Swaraj, Anurag Thakur, former union minister as well, are there presently in Mumbai. What is on the cards? Share more details, Shahid. सिमरन, देखिए, केंद्र सरकार ने जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी और ये बिल जो है पेश किया था, तो उस दौरान जो है ये इस कमेटी का गठन किया गया। जिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने का मकसद ये था कि वो लोग जो है देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद फिर जिस नतीजे पे पहुंचते हैं उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2029 का जो चुनाव है उसे वन नेशन वन इलेक्शन के इस नीति के हिसाब से कराने का सोचा था। अब आज की मैं बात करूं तो 17 से लेकर 19 मई तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो लोग हैं वो मुंबई आए हुए हैं। यहाँ वो राज्य के अलग अलग विभागों से, जिनमें से बड़े अफसरान रहेंगे, विभागों के जो मंत्री रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अलग अलग हिस्सों में जाने के बाद लोगों से मुलाकात करेंगे। इनमें जो रिटायर्ड अफसर हैं वो रहेंगे और मौजूदा जो अफसरान रहेंगे वो रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी जो लोग रहेंगे जिनका देश में या राज्य में कहीं ना कोई योगदान रहा। आपको मैं बताऊं कि 31 सदस्यों पर आधारित इस कमेटी में तकरीबन 21 लोग जो है ये सांसद रहेंगे, जिसमें से महाराष्ट्र से देखिए एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद वो हैं, सुप्रिया सुले हैं और इसके साथ साथ 10 लोग ऐसे हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो सारे लोग इस कमेटी में शामिल हैं और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो दौरा है आज तो महाराष्ट्र का है, लेकिन इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में ये कमेटी जाएगी और इसी तर्ज पर लोगों से मुलाकात करेगी। मुलाकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी और जिसके बाद फिर कोई खातिर ख्वाह नतीजे पर सरकार पहुंचेगी और फिर 2029 का चुनाव जो वन नेशन वन इलेक्शन की नीति को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ की है और बिल पेश किया है, उसको लेकर यह फैसला किया जाएगा। जी, all right, Shahid, thank you very much for sharing more details and in fact adding information. Now all eyes are going to be on what happens to the course of the One Nation One Election JPC meeting today in Mumbai.
Now, from there, let's shift our focus to other developments. A major security lapse has come to light in the Kaithal district of Haryana. The Special Detective Unit of the police has arrested 25-year-old Devendra Singh, a resident of Mastergarh village, on the charges of spying for Pakistan's intelligence agency ISI. Now, he is accused of sending confidential information of the army, including information related to India's military operation Sindoor, to Pakistan. According to the police, Devendra Singh was first detained on May 13th due to a post related to illegal weapons on social media platform Facebook. And when he was interrogated, the police received shocking information. The accused confessed that he had gone to visit the religious places like Kartarpur Sahib, Nanka Sahib, Lahore and Panja Sahib located in Pakistan through the corridor. During this time, he came in contact with Pakistani intelligence agency ISI. According to the police sources, the ISI agency in Pakistan honey-trapped Devendra through a girl there. He stayed there with the girl for a week, and from here, his deep connection with the Pakistani agency developed further. And even after returning, he remained in constant touch with Pakistani agents and kept sharing many intelligence information with him. Now, investigation has revealed further that he has been in contact with more than 5 Pakistani agents so far. Devendra Singh, who was studying in Patiala, had taken the pictures of the army cantonment area there with the mobile phone and sent them to ISI agents. Apart from these pictures, the accused also sent information related to the Operation Sindoor to Pakistan, which is considered a serious threat to India's national security. Police have said that Devendra's activities had become a big threat to the sovereignty, integrity and security of the country. During the investigation, the police has come to know that the accused deleted the data from all of his digital devices after being on the suspicion of being caught, so that evidence does not remain. But the cyber crime unit of Kaithal police is now engaged in recovering that data that has been deleted by this accused. The police have seized his mobile phones and other devices. Of the process of the retrieving deleted data through the technical means is underway. Kaithal headquarters DSP Veer Bhan has confirmed the case. Now listen in to the details that are shared by him. Well, all right, while we get to that bite in just a bit. All right, let's listen in to what the details are. जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया, और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये ISI खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था, और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके आधार पर इसका एड्रेस और ढूंढ करके फिर हिरासत में लिया। All right, now Ellen Rao, who's a former DCP of Delhi Police, joins me live on the broadcast. Appreciate you joining me at this point of time, sir. Now, this is a big development that has been achieved, a big breakthrough by the Kaithal cybercrime police, which has been able to attain, which has a serious threat posing to the nation's security and sovereignty. As a person who has been having serious ties with ISI and now in fact under the radar of the police and the investigative agencies, sir, in your view, how does in fact this kind of nexus that prevails on Indian soil damages the own threat that is being posed by the ISI agents or the Pakistani terrorists, as well as oftenly such kind of incidents do give the indication that these terrorists and such nexus and the overground workers as well at times they get unnoticed, and that is why there are internal conflicts and loopholes
which result into many such threats being turning into reality? Good evening, ma'am. This is really a very good catch by the Qatar Cybercrime Police. And at this juncture, when there is a tension of Pakistan and Hindustan, between the Pak and Hindustan, then at this point of junction, this is very important because such type of black ships are in our country who compromise our information to the enemy country like Pakistan under the instructions of ISI. In the past, we have also arrested so many people and we thoroughly interrogated them. Then these are motivated by the ISI and the Pak establishment and Pakistan army also sometimes. So many people have been earlier arrested in the military, working in military, air force and other things. And in this matter, I think he will be interrogated thoroughly. All his information, all his mobile phone, all his telephone, this laptop or any electronic item will be thoroughly probed, thoroughly checked, and then it will be found, it will be revealed whosoever is in connection with him, either in India or in Pakistan. They will definitely be bring in the ambit of the investigation, and after thorough investigation, it will be revealed what type of information he has already passed on and what was his motive, how he was conducted, and who are the persons who motivated him here to become a spy against our country. So now this is all matter of further investigation, and I think that is a very good breakthrough. And after this, after his arrest, maybe some other persons may also be arrested in connection with this recent case. And after thorough interrogation of all the persons concerned, and then all information will be collected, and that will be analyzed as to how the sovereignty and integrity of our country is being compromised by such type of people. Well, all right, Mr. Rao, thank you very much for weighing in your opinion at this point of time. Now, let's shift our focus to other developments. The Bharatiya Janata Party is celebrating the success of the Operation Sindoor and by paying the tribute to the valor of our Indian armed forces by organizing the Tiranga Yatra across the country. Hundreds of enthusiastic participants have joined from parts of the country, and they can be seen waving the national tricolour and chanting patriotic slogans as the processions move through the key routes. The yatra is reverberating with the chants of Bharat Mata Ki Jai and Vande Mataram, Narendra Modi Zindabad and Indian Army Zindabad, as citizens and leaders alike expressed their gratitude towards the valor of our armed forces for their decisive action against the fight of terrorism. Now, the rally is being organized to honor the bravery of the Indian soldiers who have neutralized the terrorists responsible for the recent attack on the innocent tourists in Pahalgam. Let's listen into what the leaders have said. तिरंगा यात्रा हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई में प्रचंड जीत हुई। तो इसलिए आज तिरंगा यात्रा हम इसको सफल बनाने के लिए, मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज भारत माता की शक्ति दुनिया ने देखी है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता, सबसे शक्तिशाली नेता, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक बहुत बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से उभर के आया है। तो इसलिए हम सब गर्व महसूस करते हैं। पूरे देश में हम सब लोग मिलके, सब देशभक्त मिलके तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये एक ही संदेश दे रहे हैं, हम सब एक है। देश का रक्षा के लिए हम फौजियों को साथ खड़े होना, फौजियों को बला देना, देश का सरकार को बला देना, ये अभी लोगों का मन में है। इसीलिए सब लोग आके, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मिलके
देश के साथ खड़े हो रही है, उसको मदद देने का काम, उसके साथ जुड़ने का जा रहे हैं। किस तरीके से सैन्य सम्मान हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने, थल सेना, जल सेना और हमारी वायु सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय देकर सटीक रणनीति से पहलगाम के आतंकियों के अड्डों को नष्ट किया, 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान के अंदर 4 दिनों में पूरी तरह से तबाही मचा दी और पूरी तरह से विजय प्राप्त की। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, हमको विजय प्राप्त हुई। हम सेना का अभिनंदन करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि हर घर से सैनिक हैं, यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, सेना के प्रति लोगों का बहुत लगाव है और सारे लोग सड़कों पर आकर हमारे सैनिकों का अभिनंदन कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को नमन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। इस नगरी में राजवाड़े तक आने का, तिरंगा यात्रा का जो एक तरह से जनता का आत्मविश्वास, प्रकटीकरण, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह तो देखते ही बनता था। मैं अपने ओर से आज की इस बहुत ही ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में अपने आज के इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक हमारे रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मनोज पटेल जी, माननीय गौड़ जी, महेंद्र हार्डिया जी, सांसद हमारी कविता फटकर जी, माननीय सांसद जी श्रीमान शंकर ललवानी जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और जिलाध्यक्ष दोनों। इस अवसर पर हमारे उधर पीछे से जीतू भाई जिराती जी पूर्व विधायक और गोपी भैया नेमा जी पूर्व विधायक, इधर हमारे विनायक यादव जी, चावड़ा जी। मैं आज के इस अवसर पर सभी मित्रों को ढूंढ के धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ, हर एक ने अपने आप में अपनी अपनी टीम को ला करके एक साथ इंदौर की गरिमा के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम, कैलाश जी भाई साहब बता रहे थे कि आज तक इतनी भीड़ एक साथ कभी इंदौर में नहीं रही। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे किए, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त रणनीति के अंतर्गत एक ऐसा नया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई नीति का उद्घोष किया गया। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर में हाथ डालने वालों को जमीन के नीचे से निकाल करके जो मारने की मार पड़ी, पाकिस्तान जीवन भर नहीं भूलेगा। और दुनिया के सभी नेताओं के सामने जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल सेना को तैयारी का पर्याप्त समय दिया, बल्कि तैयारी के बाद जब मार पड़ी तो आज वो हमारे बीच में दुनिया का एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने कम समय में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के घर में जाकर के मारना, और वो भी परमाणु ठिकाने के पास जाकर के, साथ ही साथ एक के साथ कितने प्रकार के हमारी सेना ने पराक्रम दिखाए। जिन आतंकवादियों के जनाजे के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा करके जो शोक व्यक्त करने आए, उनको जनाजे वाले के साथ ही भेजने का काम कर दिया। यह है पराक्रम हमारी सेना का। मेरी अपनी ओर से सेना के शौर्य पराक्रम के अवसर पर महारानी अहिल्या की नगरी में आज मैं यहाँ शामिल हुआ। इसके पहले उज्जैन से भगवान महाकाल की नगरी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। पूरा देश आंदोलित। बीते दिन हम भोपाल में शामिल हुए थे। एक एक करके हर नगर, हर शहर में, पंचायत तक हमारी ये तिरंगा यात्रा जारी रहेगी। मेरे अपने इस पूरे आयोजन को लेकर के जिस प्रकार से हमारे माननीय भाजपा के अध्यक्ष के साथ साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का, एनसीसी के बच्चों का, एनएसएस के बच्चों का, हर वर्ग को संयोजित करने का जो प्रयास किया है, ये एकजुटता ही भारत को आगे ले जाएगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को एक और कारण से बधाई देना चाहूंगा। उनके नेतृत्व में सभी धर्मों ने मिलकर के, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने मिलकर के पाकिस्तान के द्वारा तो जो षड्यंत्र किया गया था कि उनके द्वारा आतंकवादियों ने
हिंदू धर्म के लोगों पे अटैक करके एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की जो रचना बनाई थी, षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ इस युद्ध में भाग लिया और विजय हासिल की। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सबों ने भारत के सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का सफल नेतृत्व उसी पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल के सेना का जो आज अपना बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी का केंद्र को नष्ट कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हो गया और उनका हरकत, पाकिस्तान का हरकत में मुंहतोड़ जवाब जो दिया गया, पूरा पाकिस्तान तिल मिला गया, घुटना टेक कर दिया। हर तरह का उनका चाहे ड्रोन से हमला, चाहे मिसाइल से हमला सफल नहीं हुआ। भारत का जो एयर डिफेंस इस तरह से रोकने का काम किया ताकि भारत का आज दुनिया को देखा दिया कि भारत में क्या शक्ति है, क्या है। ये हमारा जो घटना हुआ, सभी भारतवासी एक मायूसी था, लेकिन हम सबों का विश्वास था इस देश का प्रधानमंत्री के ऊपर एक कुशल नेतृत्व है जो आज सिंदूर मिटाने का काम किया है और उसको उसी भाषा में रणनीति बना के सेना का प्रमुख से विचार करके देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने सेना को अपना छूट देके उसका जवाब देके पाकिस्तान को तिल मिला करके घुटना टेक करवा दिया। ये आज पूरा दुनिया देख लिया कि भारत हर तरह से शक्ति है, हर तरह का जवाब देने के सक्षम है। अब भारत में जो कुशल नेतृत्व है भाई नरेंद्र मोदी, उसका देख लिया। इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाल के एक पूरा हम लोग गौरव समझ रहा है कि हमारा सेना हर तरह का जवाब देके दुनिया को दिखा दिया। इसलिए आज गौरव हम लोग महसूस कर रहे हैं और हमारा कुशल नेतृत्व देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया में परिचय दे दिया। इसीलिए आज का जो भी उपस्थित है हमारे ओर से आज हम लोग पर तिरंगा यात्रा कार्य समाप्त कर रहा है और जय हिंद, भारत माता की जय, सेना की जय। देखिए, आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन और ख़ास करके डीडीए के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो जिस तरीके से देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज एक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक कार्यक्रम भी उन्होंने यहाँ पर रखा है और एक मार्च भी, एक तिरंगा मार्च यहाँ से निकालेंगे। ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि वैसे तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम कम ही करती दिखाई देती हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी देश की सेना के लिए देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी जी ने जिस प्रकार का एक सशक्त निर्णय देश के लिए लिया, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद का सफाया किया और पूरे विश्व में एक नए भारत का मैसेज जो दिया है, उसके लिए हमारे डीडीए के सभी कर्मचारी, हमारे इंजीनियर्स एसोसिएशन के सभी लोग इसके साथ खड़ा हुए हैं। आज के कार्यक्रम के लिए मैं इन सब लोगों को निश्चित रूप से उनकी सराहना करना चाहता हूं कि आपने भी देश के सभी लोगों के साथ शौर्य को प्रणाम करने के लिए, देश की सेनाओं को नमन करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को नमन करने के लिए आपने ये तिरंगा यात्रा आज रखी है।